Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature lesson 7, The Last Leaf. Okay, about the author. O. Henry was. This lesson has been written by O. Henry. Okay, the author of this lesson is O. Henry. About the author. O. Henry was born on 11th September 1862 at Greenboro, North Carolina. Okay, Carolina, US. His real name was William Sindri Potter. Early education. Early education was given to him by his aunt. For his living, he did various odd jobs. He began writing with sketches, and then he started a humorous weekly, The Rolling Stone. After it, he turned short stories, and he became one of the most popular short story writer. He wrote over 250 stories. He died on 5th June 1910 in New York. Okay, about the story. Our positive thoughts generally works as medication. Okay, negative thoughts on the other hand worsen the situations. Sue and Johnsy are two artists who share a small flat. Once Johnny falls ill with pneumonia. She is serious. The doctor can do not good to her. Johnny thinks she is not going to get well. She thinks with the fall of the last leaf of the old ivy creeper, she will die. Leaves keep falling rapidly. Does the last leaf or fall? Does Johnny die with the last leaf? Let's find out. Okay. And it is autumn. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creepers have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? Okay, यानी जो बसंत ऋतु है और जो है क्या हो रहा है कि हवा तेज़ी से बह रही है और तेज़ी से हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है. ठीक है, सारी पत्तियां टूट कर गिर रही हैं. ओके, अब यानी जो लास्ट पत्ती है वो टूट कर क्यों नहीं गिरती है ये इस चैप्टर में बताया जाएगा. Sue and Johnsy, two young artists, share a small flat. The flat was on the third story of an old house. John fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnny's condition. Okay, one day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" यानी दो युवा कलाकार शू तथा जॉन्सी एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. वो दोनों कलाकार थी, आर्टिस्ट थी. ओके, वह फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था. कहाँ था वो? तीसरी मंजिल पर था. नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. उसे निमोनिया था. बस खिड़की से बाहर झांकती हुई बिस्तर से बिना हिले डुले वो सारे दिन पड़ी रहती थी. उसकी सहेली सू बहुत चिंतित हो गई. उसने चिकित्सक को बुला भेजा, यानी डॉक्टर को बुलाया. यद्यपि वह प्रतिदिन आता था, तथापि जॉन्सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. एक दिन चिकित्सक सू को अलग ले गया और उसने उससे पूछा, क्या जॉन्सी की कोई बात परेशान कर रही है? क्या जॉन्सी को कोई बात परेशान कर रही है जिससे वो बीमार पड़ गई है? नहीं, सू ने उत्तर दिया. लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. ओके, और
Sue tried her best to make Jonesy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Jonesy did not respond. Jonesy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Jonesy's room and started painting to take Jonesy's mind off her illness. She whistled while working. ओके यानी चिकित्सक जो डॉक्टर था उसने कहा कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने मन बना लिया है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, यानी उसने बीमार होने की ठान ली है और ऐसा सोच रही है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। यदि वह जीना नहीं चाहती है तो दवाएं उसकी सहायता नहीं करेंगी। ओके, यानी मन से उसको ठीक होना होगा। सू ने भरसक प्रयास किया जॉन्सी अपने चारों ओर की चीज़ों में रुचि ले। उसने कपड़ों फैशनों की बातें की, लेकिन जॉन्सी ने उत्तर नहीं दिया। जॉन्सी अपने बिस्तर पर स्थिर पड़ी रही। सू जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई और चित्रकारी करना आरंभ कर दिया। जॉन्सी का मन उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते समय सीटी बजाती रहती थी। ओके, यानी उसका मूड थोड़ा सा बदल जाए इसलिए वो खाना बनाते समय सीटी बजाती रहती थी। सडनली Sue heard Jonesy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Jonesy counting backwards. She was looking out the window and was saying 12. 12 बोला उसने. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. ओके, यानी इस स्ट्रेंजा में क्या कहा है लेखक कहता है कि अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वह तेजी से बिस्तर तक झपटी और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती बोलने के लिए कहा। क्या कहा उसने? जॉन्सी को उल्टी गिनती बोलने के लिए कहा और उल्टी गिनती बोलते हुए उसको सुन लिया। वह खिड़की के बाहर देख रही थी, कह रही थी 12। कुछ समय बाद वह फुसफुसाती 11 बोली, फिर 10 बोली, फिर उसने कहा तब 9, 8, 7। सू ने उत्सुकतापूर्वक खिड़की के बाहर देखा। उसने एक पुरानी आईवी की बेल को अपनी खिड़की के सामने की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़े हुए देखा। बाहर की तेज हवा से बेल के पत्ते झड़ रहे थे। व्हाट इज इट डियर? शू आस्क्ड। ओके, यानी शू ने पूछा व्हाट इज डियर? शू आस्क्ड। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Okay, leaves will fall. When the last leaf fall, I will die, said Jonesy with finality. I have known this for the last 3 days. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Okay, यानी प्रिय, वो उसने पूछा था कि व्हाट इज डियर? शू आस्क्ड, है ना। शू ने पूछा कि प्रिय यह क्या है? ठीक है, 6। जॉन्सी फुसफुसाई कि 6 है ये। अब वे और तेजी से गिर रही हैं। 3। ठीक है, 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब केवल 5 बची हैं। पतझड़ है, सू ने कहा, और पत्तियां गिर जाएंगी। जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने दृढ़ता से कहा, मैंने इसे 3 दिन पहले जाना है। ओ, यह बकवास है, सू ने उत्तर दिया। तुम्हारे ठीक होने से पुरानी आईवी की पत्तियों का क्या लेना देना है? चिकित्सक का यानी डॉक्टर का पक्का विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। ओके, यानी आईवी की पत्तियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
डॉक्टर का पूरा विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे। ओके, यू विल गेट बेटर। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। ठीक है, लेकिन जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू जो है अंदर गई किचन में और उसके लिए कटोरा भर के सूप ले आई। आई डोंट वांट एनी सूप जस्ट सैड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, मैं सूप पीना नहीं चाहती। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। ठीक है, वो कह रही है कि 4 पत्तियाँ और गिर गई हैं और आई वॉन्ट टू सी लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं देखना चाहती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि लास्ट जो पत्ती है वो अंधेरा होने से पहले गिर जाएगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। ओके, उसके बाद वो बोलती है, उसके बाद उसने कहा कि शू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। आई वांट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। प्लीज माई डियर, प्लीज टर्न ओवर। फ्रेंड, शी begged. Johnsy promised not to look out of the window while I paint. ओके, और उसने बताया कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ, while I paint. Okay, all right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. Okay. Tired leaves and अब वो कहती है, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सूख गई और उसके लिए कटोरा भर के सूप ले आई। ओके, उसके पीने के लिए एक कटोरा भर के सूप ले आई और उसने कहा कि मुझे सूप नहीं चाहिए। जॉन्सी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, अब केवल 4 पत्तियां रह गई हैं। मैं अंधेरा होने से पहले अंतिम पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी। उसने उसे पुचकारा, लाड़ किया और कहा, तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे प्रकाश चाहिए। मैं चित्र पूरा करना और अपने लिए कुछ धन पाना चाहती हूँ। कृपया मेरी प्यारी सहेली, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, जब मैं चित्र बनाऊँ, अपनी सहेली से कहा, जब मैं चित्र बनाऊँ तो बाहर मत देखना। ठीक है, जब मैं चित्र बनाऊँगी तो तुम बाहर मत देखना। ओके, ऑल राइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिशिंग योर पेंटिंग सून, फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। ओके, ट्राई टू स्लीप, सेड सू। I have to paint an old miner. I will call Berman up to be my model. She rushed down. Berman lived on the ground floor. Okay. He was a 60 years old painter. वो कौन था? He was a 68 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Berman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Okay, यानी ठीक है, जॉन्सी ने कहा, ठीक है, अपना चित्र जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं प्रतीक्षा करते करते ऊब गई हूँ, थक गई हूँ, मुझे मरना है, इसलिए मुझे उस बेचारी थकी पत्ती की तरह शांति से जीने दो। सोने की कोशिश करो, सू ने कहा। मुझे एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है? एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है।
मैं बेहरमन को अपना मॉडल बनाने के लिए ऊपर बुलाऊंगी। सू नीचे भागी और बेहरमन भूतल पर रहता था। वह 60 साल का चित्रकार था। उसका जीवन भर का सपना एक अति श्रेष्ठ कलाकृति बनाना था, जो कि एक सपना रह गया था। उसने अपनी चिंता बेहरमन को बताई। उसने उसे बताया कि किस प्रकार जॉन्सी मान बैठी है कि वह अंतिम पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी। ओके, इज शी स्टूपिड? इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बेहरमन। बेहरमन ने कहा कि क्या वो मूर्ख है? ओके, इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बेहरमन। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, complained Shu said, refuses to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Jauncey, Behrman said. They tiptoed into the room. Jauncey was sleeping. Shu drew the curtain together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his home, back to his room. ओके, यानी क्या वह मूर्ख है? वो जो पेंटर था, जो कितने साल का था वो, 60 साल का जो पेंटर था, उसने कहा क्या वह मूर्ख है? बेहरमन ने पूछा। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसे बहुत तेज़ बुखार है। सू ने शिकायत की, उसे बहुत तेज़ बुखार है। ठीक है, सू ने शिकायत की। वह खाने या पीने से मना करती है। मुझे इससे बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी को देखूँगा, बेहरमन ने कहा। वे पंजों के बल कमरे में गए। जॉन्सी सोई हुई थी। ठीक है, यानी धीरे धीरे चुपचाप से गए हुए थे क्योंकि जॉन्सी सोई हुई थी। उसने पर्दों को साथ खींचा। वे अगले कमरे में गए। उसने सू ने यानी खिड़की से बाहर झाँका। बेल पर केवल एक पत्ती थी। तेज़ बारिश हो रही थी। ठंडी बर्फीली हवा बह रही थी। ऐसा लगता था मानो पत्ती अब किसी भी मिनट गिर जाएगी। बेहरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह वापस अपने कमरे में लौट आया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, यानी जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीमेल वॉइस. She asked Shu to draw curtain. Shu was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. "Oh," Shu exclaimed as she looked at the vine creeper. "Look, there is still one leaf on the creeper. It looks like green and healthy. In spite of the storm and the fierce wind, it didn't fall." ओके, उसने कहा कि जॉन्सी अगली सुबह जागी। कमज़ोर सी आवाज़ में उसने सू से पर्दा खींचने को कहा। ठीक है, उसने पर्दा खींचने को बोला था और सू घबराई हुई थी। उसने बहुत अनिच्छापूर्वक पर्दे को वापस खींचा। ओह, सू ने आश्चर्य से, जबकि उसने बेल को देखा। देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ती लगी हुई है। वह काफ़ी हरी भरी है तथा स्वस्थ लग रही है। आंधी और तेज़ हवा के बावजूद वह नहीं गिरी। यानी आंधी और तेज़ हवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो पत्ती अच्छे से पेड़ पर टिकी हुई है। I heard the wind last night, said Jauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. Okay, you won't die, said Shu energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Jauncey smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. Okay, यानी क्या होता है? In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Jauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. है ना, यानी मैंने कल हवा को बहते हुए और ये कहते हुए सुना था। जॉन्सी ने कहा, मैंने सोचा कि वह गिर गई होगी। यह निश्चित रूप से आज गिर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी।
यानी पेड़ की सारी पत्तियां गिर गई हैं, एक पत्ती बची है, ठीक है। तुम नहीं मरोगी, सू ने उग्रतापूर्वक कहा, दृढ़तापूर्वक कहा, और शी हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके साथ उसने कहा कि तुम नहीं मरोगी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना है, माँ बाप के लिए जीना है। मेरा क्या होगा यदि तुम मर गई, तो मेरा क्या होगा, ठीक है। जॉन्सी छीड़ता से मुस्कराई, ओके। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। जॉन्सी छीड़ता से मुस्कराई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। हर लगभग 1 घंटे के बाद वह खिड़की के बाहर देखती और पत्ती को अभी भी वहीं पाती। ऐसा लगता था यह बेल से चिपक गई हो। शाम को एक आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई, लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी बड़ी देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। तब उसने सू को पुकारा, आई हैव बीन ए बैड गर्ल, और कहा, आई हैव बीन ए बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. Shoo hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Shoo, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Burman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. Okay? क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, ठीक है, बहुत गंदी लड़की हूँ। तुमने मेरी देखभाल इतने प्यार से की और मेरे जीवन की कामना कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। मैं हताश हूँ और दुखी हूँ, ठीक है, दुखी हो रही हूँ। अंतिम पत्ती ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी बुरी हूँ, ठीक है। एक छोटी सी पत्ती आराम से कस के पेड़ को पकड़े हुए टंगी हुई है और मैं मरने की सोच रही हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना महापाप है, ओके। सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। उसने उसे ढेर सा गर्म सूप और पिलाया और दर्पण दिया, शीशा दिया। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और प्रसन्नता से हंसी। तीसरे पहर चिकित्सक आया, यानी डॉक्टर आया। रोगी की जांच करने के बाद उसने सू को बताया, जॉन्सी मैं अब जीने की इच्छा है, मुझे पक्का भरोसा है वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊंगा और बहरमन को देखूंगा, यानी जो 60 साल का जो पेंटर था, कलाकार था, उसको देखूंगा। उसे भी निमोनिया है, लेकिन मुझे डर है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ pneumonia. This morning he was ill for only 2 days. The first day the janitor found him on the bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out of that stormy night. Okay, यानी अगली सुबह सू आई और उसने जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह जब श्री बेहरमन निमोनिया से मर गए, ठीक है, यानी जो कि पेंटर थे वो मर गए। वे केवल 2 दिन से बीमार थे। पहले दिन चौकीदार ने उन्हें अपने बिस्तर पर देखा था। उनके कपड़े तथा जूते भीगे थे, वे कांप रहे थे, वे उस आंधी की रात में बाहर थे। ओके, देन दे फाउंड, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पेज पलटिए। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out the window, look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Burman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell.
ओके, यानी लास्ट में क्या होता है कि तब उन्होंने एक सीढ़ी और उनके बिस्तर के पास अभी भी जलती हुई लालटेन देखी। ओके, फर्श पर सीढ़ी के पास कुछ कूचियाँ तथा हरा और पीला रंग भी था। प्यारी जॉन्सी, सू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी की पत्ती को देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ है? जब हवा चलती रहे तो यह क्यों नहीं फड़फड़ाती, क्यों नहीं हिलती है? यह बहरवन की अपूर्व कलाकृति है। यानी तुम्हें जिंदा करने के लिए वो जो पेंटर आया था 60 साल का, उसने ये अपनी कलाकृति से इस पत्ती को बनाया था। ठीक है, उन्होंने इसे तब चित्रित किया था जब अंतिम पत्ती गिर गई थी। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Thank you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.